Please put your hands together. I request the honorable dignitaries to please light the lamp also. Round of applause, please. Thank you, sir and ma'am. Now, as per the tradition of Banaras Hindu University, we play our Kulgeet before any our programs and lectures. काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कुलगीत की रचना श्री शांति स्वरूप भटनागर जी ने की थी एवं इसे संगीतबद्ध किया है पंडित ओमकार नाथ ठाकुर जी ने। मैं आप सभी को ये भी बताना चाहूंगी कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय की परंपरा के अनुसार कुलगीत के बाद ताली नहीं बजाई जाती। कुलगीत इन बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी ट्रेडिशन इज नेवर फॉलोड बाय क्लैपिंग। नाउ प्लेइंग द कुलगीत। सुंदर ये सर्ववेद्या की राजधानी
मालवीय जी की देशभक्ति, ये उनका साहस, ये उनकी शक्ति प्रकट हुई है नवीन होकर ये कर्मवीरों की राजधानी। राजधानी मधुर मनोहर अतीव सुंदर ये सर्व विद्या की राजधानी। राजधानी। Moving forward, I request Professor Tej Pratap Singh sir, our coordinator, to please come forward and welcome our guest. Our respected chair, Professor Vidya Prajapati ji, Chief guest of the function, Sri Deen Dayal Pandey ji, the main speaker of the day, Professor Alok Chakrawal ji, sitting in the hall, former Vice Chancellor Ramanand Lohia Awadhi University and Patliputra, first Vice Chancellor of the Patliputra University, Professor Lord Jaiswal ji, Present Dean Commerce, Professor H.K. Singh ji, Sri Bahadur Singh ji, who had been the former minister, Professor S.V. Singh Sahab, Dr. Vivekanand Upadhyay ji, Amit ji, many other faculty members and dear students. I am really delighted to have here the present Vice Chancellor Ghasidas University, Professor Alok Chakrawal ji. I requested him and he has been kind enough to spare some time for our program. He had extremely busy schedule, but even then I requested him, sir, that if you are here in Kashi, so kindly bless us also by giving some of your time so that our students can be benefited. So sir, I extend warm welcome to you, sir. Firstly, on behalf of Pandit Deen Dayal Upadhyay Chair, in which capacity I have invited you here, and also on behalf of Faculty of Social Sciences, and also on behalf of Banaras Hindu University. We really feel honored and privileged to have you here, to host you here for your enlightening lecture on national education policy, which is being debated and now it is being implemented. And in that implementation of the national education policy, you are playing a leading role, not only by theorizing but also doing in practice. And your university has been in the forefront in the implementation of the this National Education Policy 2020. And since I am the EC member of your university, so I am familiar with your working over there and performance over there. Probably if all the universities had the dynamic Vice Chancellor like you, who has new ideas, innovative ideas, as he has introduced some 10 rupees thali, where the people can have full meal. In this age when we are not getting a cup of tea in 10 rupees, he has ensured it that in 10 rupees you can get a full meal here. So he has many innovative ideas, and he is primarily from commerce, so he knows how to manage the money and how to manage it for the welfare of the society here. So we are looking forward to your lecture on national education policy and experiential learning.
Sri Deendayal Pandey ji. He is again a very since he is a RSS Pracharak. Many schedules are there. So in a day he has to manage many programs running from here and there. But it is the training of this and that despite having many schedules in a day, they manage to do all the things very efficiently and competently. Sir, we are so happy to have you here, and he is the chief guest of the 2 days program. So we also will be, apart from Professor Chaturwal, views on national education policy, we also will be benefited from his opinion about the education, about the society and many things, because his area of expertise is very vast. And again, he is an activist. So activist knows more about the things which are important for us, and in our social science also now we are also promoting these participatory action research. So where we are also actively involving the activists in our academic pursuit. So sir, I welcome you on behalf of my chair, on behalf of our faculty of social science and our Banaras Hindu University. Lastly, I am fortunate that since I have joined this chair, I have a leader like Professor Vrinda Pranjali. I would not have been able to do so many things if I would not have her support and blessings. She is a very imaginative, accommodative leader, and I am happy to share my extremely good experiences with her. She had extremely busy schedule again, being a dean. And you see, many deans and vice chancellors, after getting the positions, first thing they do, they stop taking classes. But that is not the case with the madam. She is engaging the classes as well as doing her administrative work. And since the dean work should not clash with the classes, so she has scheduled her class from 9 o'clock in the morning here, so that before dean office opens, at least she has taken full classes. So, madam, you are a family member, so despite being a family member, it is a responsibility on behalf of my students, the chair and faculty to extend you warm welcome. With this, now I will be failing in my duty if I am not welcoming my own students. Because these students, I know none of them come to the department before 11 o'clock. So I am familiar with their schedule. But today on my request, they have come early in the morning. The first student who came over here at 8 o'clock, he called me, sir, everything is closed here. I am here, what to do? Even dean office staff cleaning people have also probably not done. So I said, wait, it is still 8 o'clock, by 8:30 everybody will come. So this is the devotion, dedication of my students, that despite, this is not their habit to get up in the morning and come here. And they were also skeptical whether they will be able to come at 9 o'clock. But the majority of them, almost 90% of them, came before I came over here. So I also extend, though you are part of my family, but even then I extend warm welcome to all of you. It is because of you I always succeeding in having the good program over here. Finally, some dignitaries who are here. I am so happy, sir, to have you here. I will start from the corner. Sri Bahadur Singh Ji, who happens to be the student of this university. He has been the former minister also, very active politician. He is from the Department of History, our Madam Dean's department. And he told me he has done his PhD under Harishchandra Srivastava ji, who was probably minister
MLA. So he was in the dual role in politics and in academia. Professor G.C. Jaiswal ji, Professor S.B. Singh Saab, Professor Keshav Misra. Keshav Misra sir, whenever I invite him, he may make a point to come. He is one of the few professors who always accept my request. I am so grateful to you, Professor Keshav Misra. Professor S.K. Singh Saab, he has also been blessing me by his presence. And when I fail to get any place to organize program, so he also bails me out by offering his own auditorium in his commerce department. So thank you so much. Vivekanand Upadhyay ji, he is a part of our family. So even he is not well, yesterday he told me he is not keeping good health. But despite having a poor health, he is here. Sir is also here. He is also close associate of Vivekanand ji. So when you will find Vivekanand ji, sir is also here with him. With this, again, sorry, Balalakhe ji, sitting in the second line sometimes. Because focusing on the, I am sorry, Balalakhe ji. Balalakhe ji, very long association with him. When I conducted a capacity building program, he was one of the most dynamic participant of that thing, and I still remember that Kulgeet team from music department has not come. He said, no need of it, I will give. And professor, in a very good way, he sang the whole Kulgeet, he has memorized it all. So by the time the Kulgeet from music departments came over here, so their work was over here. So he is versatile personality. Probably he is in NSS and many activities of the university. Probably he is one of the indispensable part of our PhD administration. So Balalakhe ji you will find everywhere. So I am sorry about it. With this said, I am coming to an end. Now over to the Vidhi. Thank you so much, sir. Now, moving forward, I would like to facilitate our honorable dignitaries. Felicitate. For that, I would request Dr. Vivekanand Upadhyay sir from Department of Hindi to please welcome our chair, Professor Binda Paranjape ma'am, Dean, Faculty of Social Sciences, with the help of Angvastram, bouquet of flowers, and memento of Pandit Deen Dayal Upadhyay ji. Thank you so much, sir. Now I request Pramod Gupta ji, Project Officer from Pandit Deen Dayal Upadhyay Chair, to welcome our Chief Guest, Shri Deen Dayal Pandey ji, with the help of Angvastram. Bouquet of flowers. Memento of Pandit Deen Dayal Upadhyay ji. Thank you so much, sir. Now I request Professor Keshav Misra sir from Department of History to please welcome our speaker, Professor Alok Kumar Agarwal ji. Thank you so much, sir. Now I request Ranjana ji to please welcome our own coordinator with Angvastram only. Now before moving forward, although sir has welcomed all the guests, I would like to give you all a very brief introduction about our speaker before listening to him and all the honorable dignitaries.
Today's speaker, Professor Alok Kumar Chakraval, currently Vice Chancellor of Guru Ghashidas Central University, Bilaspur, Chhattisgarh. He is a Professor of Commerce and Business Administration. He possesses working and research experience of almost 30 years. His area of specialization are management, commerce, finance, marketing and research, etc. Sir has excellence in administration also, like administrating in higher education institutions and also in corporate administration. He has also guided numerous scholars, has got many gold medals under his academic career. Sir has also got 4 times Best Paper Award in international conferences. He has also worked as Controller of Examination of the universities. Sir has visited numerous countries for academic guidance like USA, UK, Thailand, Nepal and many more. Leading a central university from the front as the Vice Chancellor, the Guru Ghashidas University has earned a good name and reputation in his tenure. He has worked on the working environment of the university. Teaching and non-teaching staff are quite congenial and supportive in all regards. Work culture at Guru Ghashidas Vishwavidyalaya is really encouraging under his tenure. Sir is an experienced professor with a demonstrated history of working in the higher education industry, strong education professional, skilled in education technology, training delivery, management, organizational development and social media. Sir, we welcome you from the core of our heart. Please put your hands together for sir. इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए हमारे आज के मुख्य अतिथि श्री दीनदयाल पांडे जी, प्रांत संपर्क प्रमुख, राष्ट्रीय सेवा संघ। आदरणीय दीनदयाल जी, आप राज्य सेवा से अवकाश प्राप्त हैं। संघ में विभिन्न दायित्वों का निर्वहन करते हुए वर्तमान में काशी प्रांत के संपर्क प्रमुख का दायित्व है आपके पास। साथ ही काशी विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट की भी आपके पास जिम्मेदारी है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। I would also like to welcome our chair, Professor Binda Paranjpe ma'am. Although ma'am does not need any introduction here, all I can say, all these lectures and conferences are only possible because of the help and blessings of the ma'am. We welcome you, ma'am. Please put your hands together for ma'am also. We all know that Professor Tej Pratap Singh sir is our convener, the coordinator of Pandit Deen Dayal Upadhyay chair. And when it comes to international relation, the only name equal in BHU is Professor Tej Pratap Singh sir. So I welcome you and thank you also for organizing these kinds of programs continuously under the chair. Now I request Professor Alok Kumar Chakraval sir to please come on the mic and enlighten us with your thoughts. Please put your hands together. पंडित मदन मोहन मालवीय जी की इस वैसे तो पंडित मदन मोहन मालवीय जी की जन्मभूमि, जहाँ तक मेरी जानकारी है, प्रयागराज है और उन्होंने अपनी मातृभूमि को छोड़कर राष्ट्रभूमि के लिए अपने आप को समर्पित किया और एक पूरे विश्व के सामने एक ऐसी मिसाल कायम की जो आज भी सभी के लिए एक आश्चर्य का बिंदु बना हो कि कैसे एक अकेला व्यक्ति, ऑफ कोर्स थियोसॉफिकल सोसाइटी में सवेरे तेज प्रताप जी से बात हो रही थी, एनी बेसेंट जी ने जो अपना काम शुरू किया था, मगर वो एक सेंट्रल हिंदू स्कूल तक सीमित था। मगर उसके बाद 1905 में बहुत ज़्यादा उन्होंने इस बात को लेकर एम्फेसाइज किया और उन्होंने आग्रह किया कि विश्वविद्यालय तो बनना ही बनना है। और यहाँ तक कि 1911 में उन्होंने अपनी रेगुलर प्रैक्टिस छोड़ दी और 5 लाख रुपया अपनी स्वयं की जमा पूंजी राशि, आप याद करिए 114 साल पहले अगर 5 लाख रुपए, अगर आज प्रेजेंट रेट ऑफ डिस्काउंट या इंटरेस्ट से हम कैलकुलेट करें, कॉमर्स के बड़े विद्वान लोग प्रोफेसर जायसवाल और प्रोफेसर एस.के. सिंह जी यहाँ बैठे हुए हैं, वो बताएंगे कि कितनी बड़ी धनराशि है। और ऐसे विश्वविद्यालय के प्रांगण में आना और एक ऐसे शोध चेयर के अंतर्गत बोलना, एकात्म मानववाद जो 84-85 पेज की पुस्तक है, आज पूरे विश्व को दिशा और दशा दे रही है। और ये कहा जा रहा, माना जा रहा है कि अगर भारत को विश्वगुरु बनना है,
तो मानव एकात्मवाद के हर पन्ने को बार बार लगातार अनेक बार पढ़ना पड़ेगा और तभी जाकर भारतवर्ष विश्व गुरु बनेगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में हर पन्ने पर एकात्म मानववाद में लिखी गई बातें आपको परिलक्षित होंगी। मुझे इस बात का हर्ष और गर्व दोनों है कि इस कार्यक्रम की अध्यक्षता माननीय दीनदयाल पांडे जी कर रहे हैं। हमारी प्रोफेसर पंजाबन परांजपे मैडम जिनके बारे में इतना कुछ हमने सुना कि वो डीन बनने के बावजूद रोज अपना लेक्चर लेती हैं, और जैसा कि तेज प्रताप सर ने बताया कि बनने के बाद पहला काम यही होता है, तो ये एक शिक्षक की आदर्श भूमिका बताती है। मुझे गर्व है, पिछली बार भी आपसे मिलना हुआ था और जब आपने आज बड़े बुलंद आवाज में जब गीत गाना शुरू किया, इसी खंड में हमारे माननीय जायसवाल साहब और एस.के. सिंह सर भी हैं, और हमारे अपने न्यास के कार्यकर्ता विवेकानंद जी को देख करके बड़ा अनुराग भी होता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एक ऐसा दस्तावेज है, जैसे रामचरितमानस बार बार पढ़ते हैं तो उसकी अलग व्याख्या और उसको समझने के लिए बार बार उसको पढ़ना पड़ता है। कुल 66 से 68 पेज का है, अंग्रेजी वाला अगर देखा जाए, हिंदी अनुवाद 102 पेज का है। अब उसमें सब चीजें लिखी नहीं गई। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में, एक्चुअली 2019 में ड्राफ्ट आ गया था। ड्राफ्ट बहुत बड़ा था और ड्राफ्ट करीब मैं समझता हूँ कि शायद 600-700 पेज का था, जहाँ तक मैं मानता हूँ। और उसके बाद कई लाख पृष्ठ के उसके ऊपर सुझाव आए, और माननीय कस्तूरी रंगन जी को मैं अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूँ, क्योंकि जो उस समिति के अध्यक्ष थे और जिनकी नेतृत्व में वो सारा कार्य किया गया, तो इसमें ऐसी बहुत सारी बातें जिनको समझने की आवश्यकता है। उसके बाद बहुत सारे आनुषांगिक ऑर्डिनेंसेस, पत्र, नियमावली, ये सारी चीजें यूजीसी है, जैसे एनसीआरएफ है, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट का गाइडलाइंस है, अभी हाल ही में आया अप्रेंटिसशिप एम्बेडेड डिग्री प्रोग्राम है। ये सारे राष्ट्रीय शिक्षा नीति को ध्यान में रखकर ही लाई गई बात है। मुझे सर पूछ रहे थे कि क्या टॉपिक रखना है, तो मैंने कह दिया एनईपी एंड एक्सपीरियंशियल लर्निंग, शायद यही टॉपिक अपन ने रखा है। तो आप लोगों ने एक सुना होगा, वैसे वो बार बार किस्सा सुनाने की आवश्यकता नहीं है, वो गाय पर निबंध वाला किस्सा है, ठीक है ना। हम बात तो अपनी वही रखेंगे, गाय पर निबंध अभी नहीं सुनाएंगे, क्योंकि समय बहुत कम, मुझे यहाँ से सीधा एयरपोर्ट जाना है। तो कुछ बातें मैं जरूर आपको बताऊंगा कि एक्सपीरियंशियल लर्निंग होता है क्या है। और जब 1823 से ये सारा क्रम शुरू हो गया था कि जब वुड्स डिस्पैच, सब पढ़े हैं, सब जानते हैं वुड्स डिस्पैच में क्या हुआ, मैकॉले ने क्या किया, वायसराय ने क्या क्या चीज, मगर उन्होंने ये कहा कि भाई 10वीं के बाद की सारी पढ़ाई अंग्रेजी में होगी और व्हाइट कॉलर जॉब बनाने की। तो हमारी जो परंपरागत चीजें थी वो हम सब भूलते गए एक के बाद एक। अमरेली एक जगह है, आप लोगों ने कभी नाम शायद सुना होगा, गुजरात में एक शहर का नाम है, और परचांस वो मेरा ससुराल भी है अमरेली, गुजरात में। तो वहाँ फारवर्ड हाई स्कूल एक स्कूल है, उसमें एक लड़का पढ़ाई करता था, और आज से पुरानी बात है, करीब अर्ली 50s-60s की बात होगी मैं सोचता हूँ। तो पढ़ाई करता था, 10वीं पढ़ ली, फिर 12वीं पढ़ाई कर ली। अब आप लोग जानते हैं कि गुजराती बच्चे बहुत ज़्यादा पढ़ाई के ध्यान, उनका बिजनेस में होता है। 12वीं पढ़ाई के बाद उसके पिताजी का कलकत्ता में किलो के भाव दवा बेचने का काम कर लिया। किलो भाव समझते हैं, 1 किलो पैरासिटामोल, 1 लीटर एस्पेक्टोडाइन, है ना, 1 किलो सेट्रिजिन। ऐसे आप कभी वो जो गली के मोड़ में नुक्कड़ पे दुकान, वो चाय की दुकान होती है, उसके बगल में एक छोटी सी क्लिनिक भी होती है। एक तो डॉक्टर साहब बैठे रहते हैं, 30 रुपया में आपको दवाई भी देंगे और आपको चेकअप भी कर लेंगे। सब 30, 40, 50, 60 भाव बढ़ गया हो। हमारे डॉक्टर त्रांबड़िया थे, तो उनके वही सब मजदूर वगैरह आते थे, तो उससे पूछते थे कि दवा का पैसा कितना हुआ। तो उसमें दवा, कभी कभी किसी मजदूर के पास पैसा नहीं होता, तो उसको दवा भी देते थे और उसको भाड़े का पैसा भी देते थे, और कहते थे कि अगली बार आना तो पैसा लेते हैं। बड़े सिद्धांत क्या है। फिलहाल उसके पिताजी कलकत्ते में किलो के भाव से
दवा बेचते थे। तो चला गया पिताजी के पास, चलिए हम भी बैठेंगे, गद्दी पे बैठेंगे वकीलों से। फिर पिताजी ने कहा कि सारा दिन बैठा रहता है, क्या करेगा? तो वहीं कलकत्ता यूनिवर्सिटी से बीकॉम में एडमिशन ले लिया। बीकॉम की पढ़ाई तो ठीक है, कॉमर्स वाले थे सिंह साहब, तो बीकॉम की पढ़ाई शुरू किया उसने और साथ में बेचता था। तो वो लाइसेंस राज हुआ करता था उस समय, आपको पता है कि हर चीज लाइसेंस से चला करती थी। बजाज स्कूटर अगर लेना हो तो 5 साल 10 साल पहले उसको बुक करा लेना पड़ता था, और उसके बाद प्रिया, चेतक, सुपर जो भी मिल जाए तो आपका नसीब और टेढ़ा करके किक मारते थे, ठीक है ना। बहुत सारे लोगों ने जिनको याद होगा वो सब। तो करीब 80 का जब दशक शुरू हुआ तो सप्लाई कम हो, तो उसने एक दिन अपने पिताजी से कहा कि पिताजी क्यों ना हम लोग खुद अपनी फैक्ट्री बना कर उत्पादन शुरू करते हैं। पिताजी ने डांट लगाई, अरे हम लोग ट्रेडर आदमी हैं, खरीद के बेचते हैं, हमारे पास इतना पैसा कहाँ है लगाएंगे। तो सन 1980 से लगा अपने पिताजी को, 80 में कहा, 81 में कहा, 82 में किस तरह उसके पिताजी मान गए, चलो अच्छा एक काम करते हैं। उसको 10,000 रुपया दिया और वो 10,000 रुपया लेकर के वापी, भरूच, अंकलेश्वर ये वाला पूरा बेल्ट अब कहाँ जाकर एक छोटी सी अपनी फैक्ट्री लगाएगी, वहाँ उत्पादन करेंगे। अब आप समझिए कि उसने कहीं से प्रोडक्शन इंजीनियरिंग की पढ़ाई नहीं की थी, मैनेजमेंट की पढ़ाई नहीं की थी, ठीक है, फार्मास्यूटिकल्स की कोई पढ़ाई नहीं की थी, कुछ भी नहीं किया था, केवल दुकान बैठकर बेचता था। उसको ये पता था कि ये केमिकल बनाएंगे, यहाँ से लाइसेंस लगाएंगे, ये सारी चीजें करते करते वो कंपनी इतनी बड़ी कंपनी हो गई कि भारत की एक रैंडमैक्स से बहुत बड़ी कंपनी हुआ करती थी, उसको टेक ओवर कर लिया। डाइची एक जापान की कंपनी है, उसको टेक ओवर कर लिया। अमेरिका की आधा दर्जन कंपनी को टेक ओवर कर लिया। इजराइल की किसी कंपनी को टेक ओवर कर लिया और उसका नाम है सन फार्मास्यूटिकल्स। सन 2016 में दिलीप संघवी को देश के सबसे अमीर आदमी का खिताब मिला। कैसे हुआ? अगर वो बैठ करके एमफिल पीएचडी कर रहे होते तो शायद यहाँ तक नहीं पहुंचते। थीसिस लिख ले तो बहुत बढ़िया। और उन्होंने कहा कि नहीं हम दवाई बेचेंगे, दवाई बनाएंगे। यही पर हमारा एक डॉक्टर गांगुली के चौरा पे रहा करते थे, तो 10 रुपया 20 पैसा 20 रुपया में दवाई देते थे। कहेंगे पप्पू का माई हैला दवाई है, सवेरे संध्या शाम के खाई, वो ऐसे कुछ बोलते थे, बड़ा लय बना कर बोलते थे। मैं सुन के बड़ा मंत्र, वो भी कॉमर्स के प्रोफेसर नहीं थे, एमकॉम किए थे। एमकॉम करने के बाद एलोपैथिक की प्रैक्टिस करते थे। कैसे करते थे हमारे जायसवाल सर बताएंगे, वो जानते होंगे गांगुली जी को। तो एक लड़का था यही सूरत का, मैं बताऊँ आप कहें साहब वही का दे रहे हैं तो दूसरी जगह भी एग्जाम्पल दे देंगे। अब उसका नाम आ गया तो आ गया। तो पढ़ाई लिखाई में जैसे कई बार होते हैं पूत के पाँव पाले दिखाई देते हैं, तो उसको लोग बड़ी तारीफ करते, बड़ा भैया तुम बहुत IAS बन जाओ। तो क्या IAS बन जाएगा? हम बन जाएंगे। IAS बनने की उसको सब बड़ी प्रेरणा देते थे। पढ़ने लिखने बड़ा तेज था। MBA कर रहा था, MBA कर रहा था या MBA कर रहा था, कुछ ऐसा कर रहा था, ठीक है। तो MA करके हम आए, जैसे अभी मैडम ने कहीं सुधारा किसी ने पूछी। तो मैं अपनी मातृभाषा में बोलना अच्छा पसंद करता हूँ। वैसे मराठी, हिंदी, गुजराती बहुत सारी भाषाएं बोलता हूँ, मगर वो अवसर आने पर बोल देता हूँ। तो लड़का वही सूरत से MBA कर रहा था, तो उसको कई लोगों ने कहा कि भाई तुम्हें IAS की तैयारी कर, और वो भी बड़ा तेज था, हमेशा कहता मैं IAS ही बनूंगा। और उसके गुरुजन भी उसको बड़ी तारीफ करते थे। इंटरेस्ट आ रहा है कहानी में? सुने हैं क्या ही कहानी? चलिए सुन लीजिए, बड़ा मजा आएगा। और जिस लड़के की बात बता रहा हूँ उसकी उम्र अभी मुश्किल से 27 साल या 27 साल अभी भी है, हयात है। मतलब दिलीप संघवी तो बहुत सीनियर आदमी हो, ये तो अभी 27-28 साल का लड़का है। जैसे आजकल सूर्यवंशी की चर्चा हो रही है, 14 साल का लड़का IPL में खेलता है। मिश्रा जी पसंद हो रहा है बहुत ज्यादा। तो मैं ये कह रहा था कि उसको कहते थे कि भाई तू MBA कर ले और उसके बाद IAS बन जाना। अब MBA कर तुम पढ़ाई करो, धंधा करना चाहिए, व्यवसाय करना चाहिए। MBA करने के बाद लड़का 17 नंबर का UGC नेट का एग्जामिनेशन देता है, उसके बाद दौड़ता है PhD करने के लिए। और PhD करने में कितने प्रकार के पापड़ बेलने पड़ते हैं, वो एक हमारे जसपाल भट्टी ने बहुत साल पहले, जो तुमको पसंद वही बात कहेंगे, बीकर को अगर जार कहो जार कहेंगे, फ्लॉप शो करके आता था, ठीक है। अगर
आप लोगों को याद हो तो फिलहाल उसने किसी तरीके से MBA पास कर लिया और लोगों को लगा कि अब ये करेगा IAS की तैयारी है, उसे खुली चाय की दुकान। अब आप लोगों को स्लाइड हुआ MBA हाँ, तो उसका नाम प्रफुल्ल बिल्लौर है, उस लड़के का नाम है प्रफुल्ल बिल्लौर है और उसकी नेटवर्थ आज की तारीख में आप कितनी कल्पना आकलन कर सकते हैं। सर आप रिटायर हुए हैं, कितनी संपत्ति इकट्ठी हुई होगी आपकी टोटल? 2-4-5 करोड़ रुपए, 10 करोड़ हो गया होगा, ठीक है। उसकी नेटवर्थ कितनी होगी बताइए, एक अंदाजा बताइए। 10 करोड़ बता रहे हैं, ठीक है। चलिए सर 200 करोड़ मान लीजिए आप। अरे मान लिए क्या, जब मान रहे तो ठीक ठाक मानिए, मानने में कंजूसी कैसी। अभी कई मित्र लोग हमारे अभी तुरंत इंटरनेट खोलेंगे और गूगल आएंगे, ठीक है। तो 600 करोड़ से ऊपर की संपत्ति है उसकी। 27 साल, अरे 28 पकड़ लिए, 30 का कर दीजिए, चलिए वैसे वो 27 साल का मान लीजिए। कई लोग खोजने जाएंगे, चलो कहाँ है, हम पकड़ते हैं उसको। बहुत सारे अलायंसेस पर तो इससे भी लोग ढूंढ सकते हैं। देखिए किसी भी विश्वविद्यालय में इस तरह की कोई सूचना नहीं है कि एक्सपेरिएंशियल लर्निंग के लिए क्या करें। क्षमा करिएगा, जब CBCS आया था, जब चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम आया तो सिलेबस को बीच में से फाड़ करके आधा कर दिया। हमारी पोर्टफोलियो एनालिसिस और सिक्योरिटी एनालिसिस, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट एक ही पेपर होता है, तो सिक्योरिटी एनालिसिस आधा कर दिया, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट आधा, मजाक। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर एंड OBSM स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, तो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट अलग कर दिया, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर को अलग कर दिया, OBSM। ऐसे नहीं होता, बीच में से एकदम आधा फाड़ दिया और कहा आधा तुम पढ़ाओ आधा तुम पढ़ाओ, तो ये तरीका ठीक नहीं। अनुभवजन्य ज्ञान को अगर लड़का LLB कर रहा है और LLB करने के बावजूद उसको जमानत की अर्जी लिखनी नहीं आती है, तो वो काहे को पढ़ाई कर रहा है। 2013 में मैंने ब्रिटिश काउंसिल का एक प्रोजेक्ट किया था लर्निंग आउटकम के ऊपर। तो लर्निंग बेस्ड आउटकम कैसे होता है, खाली 3 घंटे का परीक्षा जो समेटिव इवैल्यूएशन होता है। मैं क्षमा करिएगा, इस बच्ची ने मेरे बारे में कुछ बातें बताई, उस समय मैं गोल्ड मेडलिस्ट हो गया, और गोल्ड मेडलिस्ट इसलिए नहीं हुआ कि मैं सबसे अच्छा विद्यार्थी था, मेरी राइटिंग अच्छी रही होगी, मेरे लिखने की स्पीड अच्छी रही होगी, मेरी मेमोरी अच्छी रही होगी, बस इनके आधार पर मैंने लिख दिया और लिख दिया इसलिए मुझे गोल्ड मेडल। मगर वो लड़का जो व्यवसाय में अच्छा कर रहा है, जो लीडरशिप अच्छा कर रहा है, जो समस्याओं का समाधान करता है, जो राष्ट्र का निर्माण करता है, जो समाज का निर्माण करता है, जो बच्चों की सहायता करता है, जो बुजुर्गों की सहायता करता है, जो समाज में जाकर अपनी सेवा दे रहा है, उसको भी तो कहीं अंकित करिए। और उसका व्यवस्था प्रावधान इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में है। इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में हर चीज को शामिल किया गया। केवल आप 3 घंटे परीक्षा देकर के गोल्ड मेडलिस्ट नहीं हो सकते। आप किसी परिस्थिति को कैसे टैकल करते हो, उसको कैसे हैंडल करते हो, वो बड़ी चीज है। और इसलिए जैसे अभी 10 रुपए की थाली की बात 4-5 बार जिक्र है, आपको मैं बताऊं ये कैसे एक्सपीरियंशियल लर्निंग। 1000 से 2000 बच्चों का खाना खिलाना है, कोई छोटा बड़ा काम नहीं, और डेली खिलाना, महीने में 20 दिन मिनिमम खिलाना है, 22 दिन 24 दिन भी हो सकता है। तो उसका अनाज जो प्रोक्योरमेंट का काम है वो बच्चे करते हैं, हमारा कोई फैकल्टी नहीं करता, हमारा कोई स्टाफ नहीं करता है, ये सारा प्रोक्योरमेंट बच्चे करते हैं। चाहे वो अनाज हो, फूड ग्रेन्स हो, मसाले हो, तेल हो, चीनी हो, वेजिटेबल्स हो, फल फ्रूट हो, सारी चीजें वो बच्चे लाते हैं। सो प्रोक्योरमेंट का उनको आइडिया आ रहा है कैसे काम करते हैं। दिस इज एक्सपेरिएंशियल लर्निंग। लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट कर रहे हैं, इन्वेंटरी मैनेजमेंट कर रहे हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट कर रहे हैं, HR मैनेजमेंट कर रहे हैं, क्वालिटी मैनेजमेंट कर रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं, और उसके लिए कहीं कुछ लिखा नहीं है। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि जो बच्चे ये काम कर रहे हैं वो बाहर निकल करके कहीं किसी से नौकरी मांगने नहीं जाएंगे, अपना खुद का रेस्टोरेंट खोल लेंगे, अपना कुछ ऐसा काम कर लेंगे, वो सप्लाई का, इवेंट मैनेजमेंट का काम, दुनिया भर का काम है जो वो कर सकते हैं, और उनको अनुभव मिल रहा है फर्स्ट हैंड। काम करने आना चाहिए। हम डिग्री के साथ साथ सफोकेशन बढ़ाते जाते हैं। जैसे जितनी डिग्री बढ़ी वैसे उतना आप में संकोच बढ़ता जाता है कि अरे अब हम ये काम कैसे करेंगे। काम करने की आदत नहीं पड़ती।
बेस्ट टाइम लर्निंग 14 से 18 का होता है। उस समय हम उसको कहते हैं कि भैया अरे आज प्राइवेट यूनिवर्सिटी 4 घंटा कहती है इंडस्ट्री में जाओ, 4 घंटा तुमको पढ़ाएंगे, 8 घंटा डेली उनको काम करना कर रही है। ये बैंगलोर में ऐसी यूनिवर्सिटी है और भी देश के कई अन्य भागों में जिनका हम जानते हैं। मगर हम ये बार बार जब प्रश्न आता है तो हम कहते हैं कि भैया नियम में कहां लिखा गया, सिलेबस में कैसे डालेंगे, पाठ्यक्रम कैसे बनाएंगे। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क कहता है, नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क कहता है कि 15 घंटे डायरेक्ट टीचिंग, 1 क्रेडिट 30 घंटे लैब में, 1 क्रेडिट 40 से 45 घंटा फील्ड में काम करेगा। 1 क्रेडिट आप बच्चे को भेजिए। अप्रेंटिसशिप जो एम्बेडेड आपका कोर्स है उसमें बताया गया कि जो उसका सुपरवाइजर होगा फील्ड में उसको भी इवैल्यूएशन का अधिकार होगा, केवल प्रोफेसर उसको इवैल्यूएट नहीं करेगा। फ्रेडरिक विंस्लो टेलर ने अपनी आंखें खराब थी, टर्नर का काम शुरू किया, साथ में वो वकील की पढ़ाई भी करते थे, वकालत भी करते थे। जितना हेनरी फेरो ने कभी इंडस्ट्री में काम नहीं किया, क्या बताइएगा मेरे को जानकारी नहीं है, मगर टेलर ने काम किया। उन लोगों ने आज पूरी दुनिया में उनके बारे में पढ़ते हैं जिन्होंने काम करते करते ज्ञान अर्जित किया। ज्ञान अर्जित करके केवल किताबें लिखने का काम किया, उनको कोई नहीं पढ़ता। और पढ़ करके केवल बड़ी बातें होती है, बात की अच्छा मैं यहाँ पर आपके प्लेटफॉर्म पर बैठ करके कोई फिलोसॉफिक बात नहीं कर रहा हूँ। मैं इंडस्ट्री में काम कर चुका हूँ, मैंने दुकान चलाया, मैंने व्यवसाय किया, सारा कुछ किया, और इसलिए मुझे कोई चीज कहीं ऐसा अटपटा नहीं लगता कि ये काम नहीं हो सकता है। आप हर विद्यार्थी को काम करना सिखाइए। अगर आज विद्यार्थी स्वावलंबी होगा, उसके जेब में 2 पैसे होंगे, एक शक्ति होगी, एक ताकत होगी, एक कॉन्फिडेंस आएगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा। बच्चे के जेब में पैसा ही नहीं है, वो बेचारा कहीं जाकर चाय पीने में भी संकोच करेगा। हमारे रूरल टेक्नोलॉजी के बच्चे, एक बच्चा खुद की फीस घर से नहीं लाता है, वो अपने कर्मों से, अपने कामों से, अपने अनुभवजन्य ज्ञान से इतना पैसा कमा लेता है, उसको पॉकेट मनी लेने की आवश्यकता नहीं होती। अब ये कहेंगे कि आप आत्मश्लाघा कर रहे हैं, मैं ऐसी बहुत सारी चीजें, एक कोई ग्रुप बना लीजिए, बच्चों ने एक दुकान खोल लिया, बेकरी की दुकान खोल लिया हमारे कैंपस में, और डेली का, अभी मुझे 2-3 दिन पहले का रिपोर्ट है, करीब 8,000 रुपया डेली का सेल था उनका। प्रतिदिन 8,000 का सेल कर रहा है, मतलब 2,40,000 रुपए का महीने का सेल है। अगर मान लीजिए 1.5 लाख रुपया भी अगर खर्चा निकाल दे तो 80-90,000 रुपए की बचत तो होगी ना बच्चों को, जो 2-4 मिलकर बच्चे काम कर रहे हैं। हमारे ऐसे स्टार्टअप से बच्चे जो महीने का 2.5 लाख 2 लाख रुपए कमा रहे हैं। ये किसी विदेशी यूनिवर्सिटी की बात नहीं कर रहा हूँ, यही ट्राइबल स्टेट में छत्तीसगढ़ में बिलासपुर में एक ऐसी विश्वविद्यालय है, और ये वहाँ के अध्यापकों ने, यहाँ के विद्यार्थियों ने सब मिलकर के काम करके सब लोग काम कर रहे हैं और उसका परिणाम देख रहे हैं। निश्चित रूप से हमारे पाठ्यक्रम में, अभ्यासक्रम में ये चीज अवश्य होनी चाहिए कि आप एक्सपीरियंशियल लर्निंग ले रहे हैं। हाउ टू स्विम, किताब अगर केवल क्लास में पढ़ा जाए हाउ टू स्विम, तो अगर कभी तैरने की बारी है तो कभी तैर नहीं पाएगा। घुड़सवारी अगर हमने केवल क्लास में सिखा दी तो घुड़सवारी कभी कर नहीं पाएगा। और इसलिए व्यवसाय एक ऐसी चीज है, इवन साहित्य के लोगों के लिए, लोग कहते हैं सर हमारे सब्जेक्ट में एक्सपीरियंशियल लर्निंग का क्या स्कोप है। आप बैठ के सोचिए तो सही, कंटेंट राइटिंग कितना बड़ा मार्केट बन गया आप सोच नहीं सकते। अरबों खरबों रुपए का कंटेंट राइटिंग का मार्केट है, मगर उसको एक्सप्लोर करना सीखिए। अभिजात जोशी ओहायो यूनिवर्सिटी में बैठ करके यहाँ 3 इडियट का स्क्रिप्ट लिखता है और करोड़ों रुपए कमाता है। लगे रहो, मुन्ना भाई का स्क्रिप्ट डाला, वो बैठ करके, अभिजात जोशी इंग्लिश का प्रोफेसर, वो बैठ करके वहां अमेरिका से लिख रहा है। ठीक है, हमारे पास काम इसलिए नहीं है क्योंकि हम काम नहीं कर रहे। काम जिस दिन से करना शुरू करेंगे, हो सकता है शुरुआत में कम काम मिले, हो सकता है शुरुआत में कम पैसे मिले, मगर जब हम काम शुरू करेंगे, गाड़ी जब चलाते तो सीधा चौथे गियर में नहीं डालते हैं, पहले वो फर्स्ट गियर में आता है, धीमे धीमे चलना पड़ता है। हम लोग कॉमर्स में गियरिंग पढ़ाते भी हैं और हम बताते कि फर्स्ट गियर में गाड़ी कब चलेगी, सेकंड में कब चलेगी, थर्ड में, फोर्थ में और फिफ्थ में कब चलेगी, और रिवर्स गियर में भी कभी कभी चलाना पड़ता है। इसलिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति का एक बेसिक तत्व है, आप अनुभवजन्य ज्ञान दीजिए, केवल क्लास में मत पढ़ाइए। आप किसी प्रोजेक्ट के माध्यम से पढ़ाइए, उसको किसी क्रम के माध्यम से पढ़ाइए। और मैं बताऊं, अगर युवा कमा नहीं रहा है तो कहीं न कहीं अपने साथ अन्याय कर रहा है। हर युवा को अपनी आवश्यकता अनुसार पैसों का अर्जन करना चाहिए, और खाली दिमाग शैतान का घर होता है। सारा दिन रील, फेसबुक, इंस्टा चलाने में अगर समय जाएगा, आप निश्चित रूप से मानिए कि यह राष्ट्र के प्रति एक प्रकार का द्रोह है। राष्ट्र निर्माण तभी होगा, सन 2047 तक भारत विश्व गुरु और विकसित भारत तभी बन पाएगा जब इसके जन जन, हर व्यक्ति, हर युवा, हर व्यक्ति अपना योगदान देगा और वो बताएगा कि भारत विश्व गुरु बन सकता है। हर आदमी को कंट्रीब्यूट करना। ऐसे नहीं होता है कि हाँ आप सैमसंग इतनी बड़ी इंडस्ट्री बन गई, आप देखिए क्या क्या काम करती है। पहले सबसे पहले
चलिए वो सारी स्टोरी सुनाने का समय नहीं, आज समय भी थोड़ा सा मेरे पास कम है, मगर मैं इतना जरूर बताऊंगा कि जो भी विषय आप पढ़ा रहे हैं उसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट क्या है, वो सीखे कैसे, और उस एस्पेक्ट को जब तक, और ये कहीं लिखा नहीं है, डीन महोदय ये नहीं कहेंगे कैसे पढ़ाओ, वो उन्होंने बना दिया, बता दिया। जहां ज्यादा क्लास नहीं लगा तो आप लोग बुला कहीं क्यों नहीं क्लास लगता है, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट का लेक्चर ले लेंगे, मगर ये स्वयं स्फूर्त होना चाहिए, हमें मोटिवेट होना पड़ेगा, इंस्पायर होने की जरूरत नहीं है। इंस्पिरेशन थोड़ी देर काम करता है, मोटिवेशन लगातार काम करता है। हमारा लेक्चर सुने, शमशान में जाते हैं, थोड़ी देर शमशान में राग आता है, शमशान से बाहर निकलते फिर सब भूल जाते हैं, मगर शमशान में राग है तो उसको छोड़ दीजिए। आपके अंदर एक ऐसा भाव होना चाहिए कि हम इस राष्ट्र के निर्माता है, कोई भी राष्ट्र बना है तो सभी की सहभागिता से बना है, और वो हम सबको करना होगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति एक ऐसा दस्तावेज है जो राष्ट्र में क्रांतिकारी परिवर्तन ला सकता है, और पूरा विश्व भारत की तरफ देख रहा है। हम सभी को मिलकर के राष्ट्र निर्माण के लिए काम करना होगा। यही मेरे आज के इस छोटे से व्याख्यान का मर्म है। ज्यादा समय नहीं है, क्षमा चाहता हूं, मगर मैं चाहूंगा कि दोबारा जी जैसे हमारे बंधुओं का सहयोग मिलता रहेगा तो निश्चित रूप से आऊंगा, और इनका बहुत प्रेम है। मैं यहाँ सभी सुधीजनों को प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद आप लोगों ने मुझे सुना। Thank you so much, sir. Although it was very short but very engaging and very interesting, we wanted to hear you more. But since paucity of time, I request Shri Deen Dayal ji to please come on the mic and enlighten us with his thoughts. Please put your hands together. आज के इस गोष्ठी के अपने साथ मंच पर उपस्थित प्रोफेसर बिंदा प्रांजपे जी, मुख्य वक्ता प्रोफेसर आलोक चक्रवाली जी, बीसी गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, प्रोफेसर तेज प्रताप सिंह जी, और हम सबके साथ मित्रोत्तर संगठनात्मक ढंग से रहने वाले ऐसे पूर्व बीसी प्रोफेसर गुलाब जायसवाल जी, बहादुर सिंह जी, अन्य अध्यापक वृंद एवं विद्यार्थी बंधुओं बहनें, आज का ये सहयोग बड़ा अद्भुत लग रहा है। अभी हम लोग बैठे थे, चर्चा हो रही थी, कोई बता रहे हैं कि बहादुर सिंह जी बता रहे थे मैं यहाँ का छात्र था, मैं चुप रहा। जहाँ पर हम सब बैठे थे, कभी मैं भी वहाँ बैठता था क्योंकि मैं भी यही छात्र था, और ये पीठ और मेरा नाम दोनों भी एक ऐसा मैच किया, तो बड़ा अच्छा एक संयोग था। मैं समय की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए विषय को दोहराऊंगा नहीं। एक बात ये जरूर कहना चाहूंगा, हमारा अतीत कैसा था, अपने अतीत पर अब ध्यान देंगे तो लगता है कि विश्व गुरु तो क्या हम बहुत पहले थे भी, और बीच के कालखंड में केवल भटके भर थे, नहीं तो अपनी जो पद्धति थी शिक्षा की, शिक्षा यानी केवल विश्वविद्यालय की शिक्षा, ये शिक्षा नहीं। शिक्षा जब बात होती है तो उसमें तकनीकी शिक्षा सारी आते, नैतिक शिक्षा सारी आ जाती है, मैं समझता हूँ। और इतनी मजबूत थी कि अंग्रेजों के आने के पहले, कॉमर्स के डॉक्टर साहब बताएंगे, ये जहाँ तक ध्यान है, वो 20 से 32% विश्व अर्थव्यवस्था में भारत का योगदान हुआ करता था। आज कहां है? तो उसको सोच करके दुखी होना, दायित्व से मुख मोड़ना, ऐसा नहीं काम है। कोई चलता पग चिन्हों पर
कोई पग चिन्ह बनाता है वही सूरमा इस जग में दुनिया में पूजा जाता है। जैसा डॉक्टर साहब ने उदाहरण दिया, कहिए तो ऐसा सूरमा हम हो सकते हैं क्या? तो जीवन में दो बातें ध्यान रखनी पड़ेगी। शिक्षा से हमने ये सोचा ये बन जाए, मैंने रिसर्च कर लिया, मैं प्रोफेसर हो गया, मैं डीन हो गया, वीसी हो गया या अन्य डायरेक्टर हो गया, कहीं क्या है? हम सुफल जीवन जी रहे हैं, आनंद है, किसी प्रकार की चिंता नहीं, कमी नहीं। क्या हमारे पढ़ने का उद्देश्य यही था क्या? नहीं। सुफल जीवन जीना यह भी एक तरह से स्वार्थ है। जीवन जीना तो सुयस जीवन जीना, सुयस जीवन यानी अपने द्वारा, अपने कर्तव्यों द्वारा, अपने वाणी से, व्यवहार से, काम से कितने अच्छे लोगों को मैंने खड़ा किया जो समाज के लिए, राष्ट्र के लिए खड़े हो सके। तो जानवर भी अपना पेट भर लेता है और जो बलशाली होता है ना, वो आराम से सबको दूर खदेड़ करके अपने ही खाता रहता है। तो हम स्वस्थ जीवन जीने के लिए स्वयं मन बनाए और अन्य जो हमारे संपर्क में आते हैं उन सब के लिए हम मार्गदर्शक बने। समाज जीवन का जो भी क्षेत्र आप देखेंगे, मैं एक दो नाम लेता हूं, कला है, विज्ञान है, गणित है, संगीत है, चिकित्सा है, किसी भी क्षेत्र को उठाकर आप देखें, हमारी गणना सर्वोच्च में थी। और एक केवल इसमें से बताता हूं, आयुर्वेद में डॉक्टर नहीं होते थे, वैद्य बोलते थे। क्षमा करें, मैंने डॉक्टर मेरे मुंह से निकला कि मैं वैद्य, आज जो वैद्य है वो भी अपने को डॉक्टर ही कहते हैं। मैं आपके यहाँ विश्वविद्यालय में कार्यक्रम में था आयुर्वेद विभाग में, और मेरी बात से लोगों को दुख हुआ होगा। मैंने कहा जिस दिन आप डॉक्टर साहब लिखना कहलाना बंद करेंगे उस दिन आयुर्वेद चरमोत्कर्ष पर पहुंचेगा। आपको शर्म आती है वैद्य कहलाने में? इतनी उत्कृष्ट थी व्यवस्था। वो शायद हम सब सौभाग्यशाली लोग हैं कि ये जनरेशन जो है वो सब कुछ देख लिया। वो कच्चे मकान से पक्के मकान और बड़ी बिल्डिंग है, रेल के टिकट के लिए धक्के खाते से लेके स्पीड, वंदे भारत, क्या क्या सब देख रहे हैं। ये सौभाग्यशाली लोग हैं, यह जीवन जो जी रहे हैं। शायद ये भी देखा होगा, किसी वैद्य के पास जाना हुआ हो, वो तो दवा बनाते हैं, घोटते हैं जिसको बोलते हैं, उसके बाद उसको पुड़िया बनाएंगे और वो घोटते समय वो मंत्र है। आज की विज्ञान ऐसा नहीं कि इसको ऐसा दवा दो कि कल लौट के फिर आए। पता लगा ये हमने एक की दवा दिया, दूसरी फेलोर हो रही है। व्यवस्था नहीं, क्योंकि वहां उपचार की व्यवस्था है, रोकथाम की व्यवस्था नहीं है। हो गया, आपको दे दिया। तो मंत्र होता था, मंत्र उनकी होते थे। मंत्र में क्या है? भगवान से प्रार्थना करते हैं वैद्य, इसका रोग जल्दी ठीक हो, जल्दी स्वस्थ हो, ये उसको काम करे। पता है किसी डॉक्टर की दवा लग जाती है तो उसकी जो भावनाएं होती है उससे लगती है। तो इस प्रकार का व्यापारी था, वैद्य दवा दे रहा है, उसको पैसे चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ वो इतनी विनती करता है। यह आज है क्या? इस विधा में है कि आपकी चिकित्सा पद्धति जो नहीं है? कहने का मतलब है जिस भी विधा में जाएंगे, अगर प्राचीनतम
की तरफ जब आप ध्यान डालेंगे तो आपको सारी बातें अपने व्यक्तिगत जीवन में उतारने के लिए आपको सुयश बनने में मदद देगी। नहीं तो पाठ्यक्रम में पता नहीं आजकल है कि नहीं, हम सब जब ग्रेजुएशन से निकले थे उसके कुछ सालों बाद नैतिक शिक्षा का एक पाठ्यक्रम शुरू हुआ था, वो पास करना अनिवार्य होता था, उससे ग्रेड्स पर प्रभाव नहीं होता था। पता नहीं अभी है कि नहीं, मुझे नहीं पता। तो ऐसी नैतिक शिक्षा देने की आवश्यकता ही क्यों? इसलिए कि हमने उस नैतिक मूल्यों को ध्यान देना छोड़ दिया। वो विषय केवल यहीं तक का नहीं है, वो छोड़ा मैंने घर से छोड़ा है, शुरुआत वहां से हुई है। तो इस नाते हम किताब पढ़ करके नैतिक शिक्षा का विद्वान हो जाए, हो सकते हैं, लेकिन व्यक्तिगत व्यवहार में अगर नहीं आया नैतिकता, तो क्या उसको नैतिक कहेंगे क्या? जवाब आता है नहीं। इस नाते से अपने साथ रहने वाले, अपने से साथ जुड़ने वाले जितने लोगों के लिए अपने द्वारा कुछ बातें अच्छी हम बता सके, वो उनके लिए, और कभी कभी अपने महसूस नहीं होता है लेकिन स्वयं के लिए भी अच्छा लगता है। और ना ये जो डिग्री है, डिग्री पर मैं एक घटना बताता हूँ आपको। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर से जुड़ा हूँ, वहाँ एक आचार्य की नियुक्ति की बात है, अच्छे विद्वान। मैं नहीं जानता था कि ये मेरे पास सिफारिश है कि भाई साहब जरा ये मैं बड़े विद्वान आदमी कई जगह। अब ये जानिए कि राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में वो टीम गई थी वहां पूजा की, लेकिन दुर्भाग्य क्या है, वो परंपरागत रूप से परिवार में चला आ रहा है, उनको सब कुछ आता है, लेकिन उनके पास डिग्री नहीं है। आचार्य की डिग्री चाहिए, ये तो डिग्री का खेत ये है, इसलिए वो भी जरूरी है। लेकिन वही जरूरी है, ऐसा करके जब हम करते हैं तब हम सफल जीवन तो जी लेंगे, स्वस्थ जीवन नहीं जी पाएंगे। आप सबसे मेरा विनती, निवेदन, आग्रह है कि स्वस्थ जीवन की तरफ प्रयास किया जाए, और निश्चित रूप से यह शिक्षा नीति आपको उस दिशा में चलने की प्रेरणा देगी। आप सबने ध्यानपूर्वक सुना, इसके लिए सभी को साधुवाद, धन्यवाद। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। Now I request the chair of the session, Professor Linda Paranjpe ma'am, to answer the floor. आदरणीय मंचासीन गणपति महोदय, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जिसको हम धमनिया कह सकते हैं, जो प्रचार करते हैं, गणपति महोदय का नाम मैंने नहीं लिया, प्रोफेसर चक्रवर्ती पांडे जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय चेयर के समन्वयक प्रोफेसर जी.पी. सिंह जी और सभागार में उपस्थित सभी अमूमन हम लोग किसी भी कार्य की शुरुआत कुछ स्वस्ति वचन से करते हैं और उसमें कुछ संदेश होता है। कभी कभी उस संदेश की तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता है और हम आगे का कार्यक्रम आगे बढ़ाते रहते हैं। जैसे अगर मैं आज कहूँ, मेरी इच्छा है कि मैं इस स्वस्ति वचन से शुरुआत करूँ कि या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमः। और ये विद्यारूपेण संस्थिता जो देवी है, उसको स्मरण करके हम किसी कार्य की शुरुआत करेंगे, ये उसके पीछे एक संदेश है, क्योंकि वो हमारे अंदर का जो एक भाव है विद्या ग्रहण का, उसको उद्दीपित करेगा, ये अपेक्षा है उससे। जब हम NEP 2020 की बात कर रहे हो, उसमें
एक एक्सपीरियंशियल लर्निंग की जब बात कर रहे हैं तो वास्तव में थोड़ा सा ये सोचें कि नया क्या हो रहा है और इसको जो हम प्रतिसाद दे रहे हैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय की अगर मैं बात करूं तो हम किस किस प्रकार से सामाजिक विज्ञान संकाय के संदर्भ में हमने उसको रिस्पॉन्ड किया है। लेट मी स्टार्ट विथ अ पॉजिटिव नोट। हमारे इस महान संस्था के संस्थापक पंडित मदन मोहन मालवीय जी की हमेशा एक ये दृष्टि रही है कि these institutions of higher education जो है वो टापू बना के ना रहे, उसका समाज के साथ बहुत नजदीकी से संबंध हमेशा जुड़ा रहे। अपनी विद्वत्ता के अहंकार में वो समाज से जिससे वो आए हैं उससे दूर ना हो जाए। मालवीय जी की ये जो एक इच्छा है उसको शिरोधार्य मान के यहाँ के एक बहुत बड़े आयुर्वेदाचार्य के उडुप्पा जी, उन्होंने अपने प्रयास से एक केंद्र शुरू किया या एक गतिविधि शुरू की जिसको धीरे धीरे केंद्र का रूप आ गया, समन्वित ग्रामीण विकास केंद्र। और विगत कई वर्षों से उनकी शुरुआत जो हुई वो औषधियाँ या सामान्य एक आरोग्य विषयक जानकारियाँ लोगों से साझा करने से, फिर इस केंद्र के और कुछ ऐसे कार्यक्रम बने और अपना जो मूल उद्देश्य है उसकी तरफ केंद्र धीरे धीरे आगे बढ़ता है। मुझे ऐसे लगता है कि कम से कम हमारे इस केंद्र में NEP 2020 में ये जो एक्सपीरियंशियल लर्निंग की जो एक रिक्वायरमेंट है उसके प्रति कई वर्षों से अपना कार्य भी आगे बढ़ा के रहे हैं और नए नए विद्यार्थी छात्र उसके साथ जुड़ रहे हैं। अब उसको पाठ्यक्रमों का रूप भी मिला है, बहुत ही व्यवस्थित वहाँ पढ़ाई भी होती है और कुछ जैसे सामान्य सी बात है, हम सोचेंगे तो कि खाद जो बनती है गोबर से, उसकी ट्रेनिंग हमारे स्टूडेंट्स ले भी रहे और जो यहाँ एक केंद्र जो है जो इस तरह के सभी जो नए प्रयोग होते हैं उनकी उपादेयता या उससे जिन वस्तुओं को इस्तेमाल किया गया है उसकी योग्यता, इसके संबंध में रिसर्च करते हैं। तो उन्होंने कहा कि अपने यहाँ समन्वित ग्रामीण विकास केंद्र से जो वाली जो गोबर की खाद बनती है वो बहुत ही उत्तम क्वालिटी की बनती है और वो ले भी जा रहे लोग। मेरे कहने का तात्पर्य ये था कि भूमि ही तो सब कुछ है, वहीं से तो सब कुछ शुरू होता है और वहाँ सब कुछ जाके पहुँचने वाला है। कम से कम काशी हिंदू विश्वविद्यालय के ग्रामीण विकास केंद्र ने उससे जो अपना नाता है वो दृढ़ करने के लिए अपनी पूरी शक्ति लगाती है और अपना जो प्रबंधन है वो उस दिशा में आगे बढ़ाया। उसके साथ साथ यहाँ पहले औषधियों के संदर्भ में भी काम होता था, अभी थोड़ी सी उसमें कमी आई है, लेकिन हम हमारे आयुर्वेद फैकल्टी के लोगों से सतत संपर्क में हैं और उस दिशा में फिर से एक बार प्रयास करेंगे। और एक बात है कि जो ग्रामीण महिलाएं, खासतौर पे ऐसे समाज के वर्ग की महिलाएं जिनको रोजगार की तो नितांत आवश्यकता है, लेकिन रोजगार पर कुछ ट्रेनिंग लेने के लिए उनके पास अपना आर्थिक संबल नहीं है, तो ऐसी महिलाओं को हम ट्रेनिंग देते हैं इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट सेंटर की ओर से। और इस बार हमने एक प्रयास किया, मैं जान रही हूँ कि जिस वॉल्यूम की बात आदरणीय कुलपति महोदय चक्रवाल जी ने की उसके सामने शायद ये कुछ नहीं है, लेकिन उन्होंने ही जैसे कहा कि शुरुआत बड़ी हम्बल होती है, छोटी छोटी होती है और वो आगे बढ़ा। तो इस साल हमने ये किया, विगत एक साल पूरा लगा हम लोग प्रयासरत थे। थोड़ी सी कुछ विश्वविद्यालय कार्य की प्रणाली में कुछ हम लोगों को कठिनाइयाँ महसूस हुई, उसको ओवरकम करके ये कि जिन महिलाओं को, इन ग्रामीण परिवेश की महिलाओं को हम सिलाई का ट्रेनिंग देते हैं, उनसे हमने सेमिनार के लिए झोले बनवाए और ठीक ठाक
बहुत छोले बने, क्योंकि हमारे जो सेमिनार के प्रतिभागी थे उनको हमने पूछा तो उन्होंने सबने कहा, कुछ सुझाव भी दिया कि उसमें पॉकेट रहे तो अच्छा है, क्योंकि जनरली सबके पास मोबाइल रहता है, तो कोई भी झोला हाथ में तो उसमें मोबाइल रखने की व्यवस्था होनी चाहिए। तो अगली बार हम उसको मॉडिफाई करेंगे। लेकिन ये एक प्रयास था, वो सफल रहा, और मुझे जो खुशी उन महिलाओं के चेहरे पे देखने को मिली कि हमने कुछ किया और आज एक विश्वविद्यालय में वो लोग लेके घूम रहे हैं। तो ये हुआ व्हाट आई सेड इज ऑन अ पॉजिटिव नोट, सामाजिक विज्ञान संकाय की ओर से क्या हो रहा है। ये इकलौता एक केंद्र नहीं है, हमारे जो मेन डिपार्टमेंट्स है उनकी ओर से भी, जैसे एनर्जी इकोनॉमिक्स के संदर्भ में हो या सोशल वर्क के हमारे विद्यार्थी हो, कुछ ना कुछ इस तरह के छोटे मोटे प्रयास हमारे यहाँ चल भी रहे हैं। लेकिन जिस पुश के साथ उसको आगे जाना है, वो पूरा एक कलेक्टिव फोर्स हम अभी भी हमारे पास नहीं बन रहा है। इसीलिए मैं बहुत ही दिल से साधुवाद देना चाहूँगी हमारे प्रोफेसर टीपी सिंह सर को कि कुलपति महोदय चक्रवर्ती जी को उन्होंने बुलाया और उनसे जो हमने सुना, मुझे लगता है कि उनकी जो आस्था, जो प्रेम हमारे विश्वविद्यालय की ओर मैं देख रही हूँ, हम उनसे और सलाह लेंगे और इस तरह के क्या हम कार्यक्रम छोटे पैमाने पे ही सही लेकिन शुरू कर सकते हैं, इसमें पहल करेंगे। बहरहाल थोड़ी सी दो बातें उसके एकेडमिक पक्ष के संदर्भ में मैं कहना चाहती हूँ। इसका ये जो व्यावहारिक पक्ष है उसको पूरी तरह से मैं स्वीकार कर रही हूँ, और एक डीन की हैसियत से ही नहीं, एक इस विश्वविद्यालय परिवार के एक प्रोफेसर के हैसियत से नहीं, इवन भारत के एक नागरिक के हैसियत से मैं इसको पूरी तरह से स्वीकार कर रही हूँ। लेकिन मुझे ऐसे लगता है, और ये ध्यान देने लायक बात है, कि विश्वविद्यालयों से उसका अकादमिक पक्ष भी कमजोर नहीं होना चाहिए। विश्वविद्यालय नियर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स नहीं है, विश्वविद्यालय नियर कोचिंग इंस्टीट्यूट्स नहीं है। अगर हम प्रबंधन की बात कर रहे हैं और हमारे विद्यार्थी अगर प्रबंधन सीख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, उनको सीखना ही चाहिए। लेकिन प्रबंधन शास्त्र नाम की जो विद्या शाखा है, जिसमें बहुत गहरा चिंतन, बहुत उसके जिसको हम ब्रॉडली फिलोसॉफिकल पक्ष कह सकते हैं, उसके ऊपर भी गंभीर चिंतन विश्वविद्यालय में ही हो सकता है और वो होना चाहिए। दुर्भाग्यवश व्यावहारिक पक्ष में भी हम कमजोर होते जा रहे हैं, और ये जो जिसको हम प्योर एकेडमिक्स कहते हैं, बहुत खाटी एकदम उसका जो पक्ष है, शैक्षिक पक्ष है, उससे हम कहीं ना कहीं चूक रहे हैं। अगर हम सामाजिक विज्ञान की बात करें, कितना दुर्भाग्यपूर्ण है ये कि अगर एक सामान्य सी बात मैं आपको कह रही हूँ कि महिलाओं के साथ जो अन्याय होता है समाज में, जब मेरे सोशियोलॉजी के अध्यापक या विद्यार्थी अगर ये मुझे रिएक्शन देते कि लड़कियों को भी क्यों जाना है होटल में, बार में क्यों रात को बाहर घूमना है, तो मुझे लगता है कि हमारा सामाजिक विज्ञान इकाई में, संकाय में समाज शास्त्र विषय पढ़ाना टोटली बेकार है। उसका व्यावहारिक पक्ष ये हो सकता है कि हम स्क्वाड्स बनाएं, हमारे प्रॉक्टोरियल बोर्ड्स को बार बार लिखे कि और हमारे जवान तैनात हो, जगह जगह चौकियां लगे, बहुत ज्यादा पैसा खर्च करके सीसीटीवी कैमरे लगे। चलिए ठीक है, ये सब चलता रहेगा विश्वविद्यालय, लेकिन हमारी सोच कहाँ जाती है? हमारे साथ पढ़ने वाली, हमारे साथ काम करने वाली महिलाओं के साथ अगर कुछ दुर्व्यवहार हो रहा है, तो उसके लिए उनको जिम्मेदार मानने की अगर हमारी सोच है, तो फिर हम चाहे जितना व्यावहारिक पक्ष हमारा मजबूत करे और फ्री एंड फेयर कैंपस का दावा करे, वो फूल है, क्योंकि ये कैंपसेस है, कोई फैक्ट्री जगह नहीं है। फैक्ट्री भी आप कह सकते हैं कि यहाँ सुरक्षा प्रदान करें। Why in the university? मैं बहुत
बहुत सीरियसली गंभीरता से ये बात कह रही हूँ कि एनईपी 2020 का और एक जो मतलब है, कहीं ऐसा ना हो कि जिसमें मूल्याधिष्ठित व्यवस्था को भी उतना ही महत्व जो दिया गया है उसको हम दोयम मानने लगे, और वो नहीं होना चाहिए। कौन सी मूल्य ऐसी है कि जो इनकलकेट होनी चाहिए, जो हमारे कैंपसेस को, हमारे विद्यालयों को और समर्थ बनाए, एक नागरिक के तौर पे भी और एक कलेक्टिव ग्रुप ऑफ लर्नेड इंडिविजुअल्स के रूप में भी। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हम लोग बचपन में एक जोक की तरह लेते थे और बड़े हो गए तो कुछ एक समय तक हमको उसमें बहुत ज़्यादा मज़ा आता था उसको कोट करने में। आज मुझे लग रहा है कि नहीं, वो जोक के ही लेवल पे रहना चाहिए। क्या हुआ कि एक शेफर्ड था, एंड नथिंग, नो ऑफेंस मेंट टू अ शेफर्ड, बस ये कह रही हूँ कि एक मैथमेटिक्स का प्रोफेसर, तो शेफर्ड ने उसको एक हैंडफुल ऑफ पेबल्स दिए और कहा गणितीय है ना, बताइए ये कितने हैं। एक संख्यात्मक उत्तर वो उनसे अपेक्षित कर रहा है। तो उन्होंने कहा कि भैया गिनती किए बगैर मैं कैसे बोल सकता हूँ, कैसे गणित के प्रोफेसर है आप, मैं बताता हूँ, ये हैंडफुल है। जोक है, अच्छा जोक है, मजा आता है सुनने में। बट एक मैथमेटिशियन को अगर हम केवल संख्यात्मक गणना करने की व्यक्ति समझने लगेंगे तो उससे ज्यादा गणित शास्त्र का दुर्भाग्य कुछ नहीं। क्योंकि संख्यात्मक बोध होने के पीछे क्या मानवीय प्रक्रियाएं हैं, इसको समझने का वो शास्त्र है। और अगर हम उसको तो यह मानने लगेंगे और विश्वविद्यालय में, तो फिर विश्वविद्यालय में हम है क्यों? हाँ, गुणवत्ता देखनी ही चाहिए। एक खास किस्म का विश्वविद्यालयीन चारित्र्य को भी हमें बढ़ावा देना ही है, और इसका संगम करने वाला एनईपी 2020 में भाव है। क्योंकि एनईपी 2020 लागू करने के पहले कुछ वर्कशॉप्स या इवन द प्रिंटेड डॉक्यूमेंट विच इज देयर इन आवर हैंड, उसको आप पढ़ेंगे तो सतत आपको ये महसूस होगा कि जिसमें कहीं भी चरित्र निर्माण को, मूल्याधिष्ठित व्यवस्था को दोयम नहीं रखा गया है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जिस शिद्दत के साथ वो सामने आना चाहिए वो नहीं हो रहा है। तो हमारे साथ, हमारे अपने विश्वविद्यालय कैंपसेस में हमें और संवाद की जरूरत है अलग अलग हमारे डिसिप्लिन्स के साथ, जैसे प्रबंध शास्त्र, psychology and various branches of knowledge, they should come together and try to understand कि ये मूल्य और ये व्यवहार, इनकी नजदीकी कैसे बढ़े। क्योंकि अनफॉर्चुनेटली ये होता है कि मैं हमेशा, मेरा एक फेवरेट गाना है वो कोट करती हूँ, एक देवा हो देवा गणपति देवा तुमसे बढ़कर कौन। फाइन भाई, मेरी भक्ति है देव के प्रति, तो मैं कहती हूँ कि मेरा देव सबसे बड़ा है, और तुम्हारे भक्तजनों में हमसे बढ़कर कौन। ये जो पार्ट है, if we are leading ourselves to those kinds of very egoistic stance of being experts of something and belittle the other branches of knowledge and experiences, तो हमने कुछ नहीं अचीव किया। और एक अंतिम बात मैं कहना चाहती हूँ जो सबके लिए इक्वली लागू होती है, अध्यापक, शिक्षक और पूरी शिक्षकेतर हमारी जो कम्युनिटी है, अलग अलग लेवल्स पे काम करने वाली। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के संदर्भ में तो मैं निश्चित रूप से कह सकती हूँ कि immediately if something is required, एंड जो जिस किसी महान व्यक्ति के स्मृति में हम दिन साथ सेलिब्रेट करते हैं, उनके चरित्र में आपको दिखेगा, और जो हमारे चरित्र में नहीं है, आलस्य का त्याग। We are basically very statusless। हम दूसरा कुछ करने में जो अपनी मैक्सिमम एनर्जी एंड टाइम देना चाहिए वो नहीं दे रहे। अमूमन हमारे विद्यार्थी दिन में 8 घंटे नहीं पढ़ रहे,
अमूमन हमारे अध्यापक दिन में 4 घंटा नहीं पढ़ा रहे। अमूमन हमारे बाकी सब जो विभिन्न लेवल के जो वर्कर्स है एट डिफरेंट कैपेसिटीज, वो अपने ऑप्टिमम एनर्जी के साथ काम नहीं कर रहे। एंड अगर हम कहें कि आप देखिए ना कि किस महान व्यक्ति ने इस विश्वविद्यालय को कैसे निर्माण किया, उसके बारे में यहाँ कथा प्रस्तुत है। मैं जानती नहीं हूँ उसके ऐतिहासिकता, बट सुनने में भी रोंगटे खड़े होते हैं कि काशी नरेश ने उनको कहा कि जितना आप चलोगे सुबह से लेकर शाम तक, उतनी भूमि मैं आपको दे दूंगा विश्वविद्यालय बनाने के लिए। और मालवीय जी चले, अपने पैर से भूमि नापी हम लोग। बहुत उत्तम वकील थे और बहुत प्रतिष्ठा वाले थे, वो आर्ग्यूमेंट कर सकते थे और बातों बातों में शायद काशी नरेश को अपने पक्ष में करा के जमीन दे देते। He didn't do that. He walked. और उस प्रेरणा से लेके अभी तक हम क्या कर रहे हैं, इसको थोड़ा सा इस बहाने, क्योंकि नया कुछ हो रहा है, पहली बार हमारा 1 वर्ष पूरा होने जा रहा है, लेट्स सिट टुगेदर एंड थिंक अबाउट इट। और टीपी सिंह सर ने इसके लिए मौका दिया है, इसके लिए मैं पुनः एक बार उनको साधुवाद देती हूँ। आज के हमारे सभी अतिथियों ने भी इतना उसके बारे में, जैसे पांडे जी ने जो इतिहास बोध की बात की, नहीं भूलना चाहिए हमको उसको भी। बस उसमें केवल रममाण होके नहीं रहना है, आगे बढ़ना है। एक मराठी के महान कवि ज्ञानपीठ अवॉर्डी भी, उनकी 4 लाइनें मैं आपको सुनाती हूँ, थोड़ा मराठी भाषा का भी आनंद लीजिए। इतिहासाचे अवघड ओझे डोक्यावर घेऊन ना नाचा, करा पदस्थलक्याचे आणि चढुनी त्यावर भविष्य वाचा। इतिहास का एक बोझ अपने सर पे लेके उसके नीचे दबिए मत, उसको नीचे रखिए, उसके ऊपर चढ़ के अपना भविष्य देखिए। थैंक यू।